Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to the science class for class 7th, and today we are going to learn the remaining thing of chapter 9, that is soil. So without wasting time, let's get started. So we have learned about the soil, that the soil is used, is important for agriculture, for food, for shelter, for clothing and for habitat, and finally we can say that if there is no soil there will be no life. Okay, yes, we have seen the soil formation, how the different factors are responsible for formation of soil like frost, temperature change, living organism, wind and water. So all these factors help in the formation of soil, which take a very long time. Then we saw the soil profile, that is the different layer of a soil. Okay, yes, so that is the soil profile. And we saw the composition of soil, that is the soil particles, then humus, then water, then air and the soil organism. So we have already discussed in detail that soil type like sandy, loamy and clay. These are because of the size of particle. Okay, yes. Then we saw the humus, soil, air and soil organisms. Yes, soil, air and soil organisms. Soil air is present between the soil particles, which is important for the growth of plant. Then we saw the soil organism also are important as they make the soil very fertile. Then we saw the soil color. So depending upon the soil particle, its color is different. Okay, yes. Then we saw the different crops. Those are grown in different type of soils. Okay, yes. So today's topic is soil erosion. So we will discuss it in detail. So soil erosion. So soil erosion is done by basically by two factors, that is water, that can be by rain, and by air. So soil erosion can be by air, by water. So we have already discussed the importance of soil. So if soil will erode, or if there will be erosion of soil, then the sustenance of living organism on the earth will be difficult. ठीक है, अगर soil erosion होगा तो जो sustainability है human beings की या plants का on earth, it will be very difficult. So what are the factors responsible for the soil erosion? What are the factors responsible like soil erosion? ये कौन से ऐसे factors हैं जो help करते हैं water और wind को कि वो soil erosion, जिसे soil erosion होता है. So we have deforestation, overgrazing, poor farming and forest fire. So how the deforestation help in the soil erosion? So deforestation, we know that the deforestation is the removal of plants from the land. Okay, so किसी भी पार्ट से जब प्लांट्स को हम लोग कट कर देते हैं, so that is a deforestation. जैसे कि ये कोई पार्ट है, ये कोई लैंड है, यहाँ से फॉरेस्ट कट कर दिए गए हैं. Okay, so that there is no vegetation. Okay, yes. So due to the removal of plants and plants, okay, there is a loss of vegetation. Okay, and due to that, if there is any rain or water, okay, so the water run off. Okay, water जो होता है ऐसे रन होता है, बहता है या रन होता है, जिसके साथ साथ में जो सॉइल पार्टिकल्स है, जो सॉइल पार्टिकल है वो भी साथ में उसके बह जाते हैं. ठीक है, yes. And ultimately when these soil particles, when they go and they settle down in the river, जब वो ऐसे कोई एरिया है ऐसे और ये रिवर है सपोज, जब यहाँ से जो मिट्टी है वो इरोड होके वो जब आके नीचे सेटल डाउन होएगी, ऐसे यहाँ से जो मिट्टी है यहाँ पे नीचे आके रिवर के बेड पे, जो रिवर का नीचे है वहाँ पे सेटल डाउन होगी, तो क्या होगा, जो पानी का लेवल है ऊपर बढ़ेगा, और जो पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो क्या आसपास बाढ़ आएंगे. ओके, यस. सो इट विल कॉज अ फ्लड. ओके, यस. एंड फाइनली इफ देयर विल बी नो ट्री, देन इट विल बी मोर एक्सपोज टू विंड इरोजन ऑल्सो. ठीक है, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, वेजिटेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे विंड इरोजन का भी चांसेस बढ़ जाता है. द नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग. सो बेसिकली जो छोटे छोटे वेजिटेशन होते हैं, घास फूस जो होते हैं, जो भी लैंड पे होते हैं, अगर वो ओवरग्रेजिंग से वो हट जाते हैं तो जो
तो ये जो एक्सपोज होता है वाटर के लिए और जो है एयर के लिए, दोनों के लिए एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो और फिर वो इजी हो जाता है इरोड करने के लिए, ठीक है। ये सो ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, जो वेजिटेशन होता है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एंड देन इट फाइनली बिकम अ बैरन लैंड विच इज देन बिकम वल्नरेबल फॉर द इरोजन बाय विंड एज वेल एज वाटर, ठीक है। सो जो विंड और वाटर से जब वहाँ का वेजिटेशन हट जाता है, वेजिटेशन लॉस हो जाता है, तो क्या होता है, विंड और वाटर से उसका इरोजन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर यू कैन सी हियर, अगर यहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे झाड़ियाँ होती, बहुत सारे प्लांट्स होते, तो ये जो मिट्टी का जो इरोजन हुआ है ये नहीं हुआ होता था, ठीक है। यस, देन पुअर फार्मिंग मेथड, सो यस कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, ठीक है। किसी लैंड पे कंटिन्यू एक ही तरह का क्रॉप उगाए जा रहे हैं। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। सो क्या होता है कि अगर हम लोग एक्सेस फर्टिलाइजर यूज़, केमिकल्स यूज, बहुत खूब सारा केमिकल यूज करेंगे तो जो लैंड है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, फिर इसमें कुछ उगेगा ही नहीं, ठीक है। जो भी लैंड है अगर इसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं, खूब सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यू इसको ग्रो कर रहे हैं इसमें क्रॉप, तो क्या होगा कि ये जो लैंड है, ये जो इसकी फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो फर्टिलिटी खत्म है, इसमें क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे, क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे तो खेत जो है, जो फील्ड है वो खाली हो जाएगा, और जब खाली होगा तो फिर उसमें जब रेन होगा या ऐसे भी विंड से जब सूखा होगा तो उसका इरोजन हो जाएगा, ये जो ऊपर का लेयर है वो हट जाएगी, ठीक है। यस, इरोजन इन बेसिकली जो भी सॉइल है उसका जो टॉप लेयर है, सॉइल का जो टॉप लेयर है वो उसका हट जाना, उसका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना बह के, ठीक है। यस, तो या तो वो विंड के थ्रू हो उड़ के, ओके, या तो वो सॉइल के थ्रू हो, सॉरी वाटर के थ्रू हो, ठीक है। यस, सो यू कैन सी हियर, यस, देन forest fire. So due to the forest fire also, after a forest fire, the soil exposed to wind and water, okay. So जो soil होता है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पहले बहुत सारे फॉरेस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स थे, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ, सब जल गए, तो फिर क्या होगा कि यहाँ की जो लैंड है वो एक्सपोज जाएगी, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं रहेगा और वो एक्सपोज हो जाएगी विंड और वाटर के लिए, और फिर वहाँ पे विंड से भी इरोजन होगा और वाटर से भी इरोजन होगा, ठीक है। यस, देन वी next thing we have a prevention of soil erosion. So how we can prevent the soil erosion? So जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए, अगर इनको हम लोग ध्यान दें, इन पे अगर हम लोग काम करें तो हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। यस, सो सॉइल इरोजन इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज द सॉइल कंजर्वेशन, ओके। यस, सो कैसे कैसे सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन, बाय ट्री ओवर बाउंड्रिंग, क्रॉप रोटेशन एंड टेरेस क्रॉपिंग। सो डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज एफॉरेस्टेशन। सो एफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। जहाँ पे भी लैंड खाली है वहाँ पे हम लोग ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। यस, बिकॉज इट्स रूट होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को वो होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। और ऑल्सो दे हेल्प इन द सीपेज ऑफ वाटर, ठीक है। वो और जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करने में भी हेल्प करती है, ठीक है, जो प्लांट्स के जो रूट हैं, ठीक है। यस, सो ऑफोरेस्टेशन करके हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे हमें प्लांटेशन करना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। यस, एंड प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को हम लोग काटना बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करें। इस तरह से हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। देन ट्रीज ओवर बाउंड्रीज, जो कि ठीक है, कोई भी अगर ऐसा खेत है तो खेत के साइड में अगर हम लोग ऐसे प्लांट्स ट्रीज उगा दें तो क्या होगा, जो विंड होगा उसका कुछ इफेक्ट कम हो जाएगा, विंड का इफेक्ट कम होगा और जो खेत है वो अगर ये सूखा भी है तो इसकी इरोजन नहीं होगा, ओके। यस, देन क्रॉप रोटेशन, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक ही क्रॉप हम लोग बार बार उगाए जा रहे हैं एक ही खेत में, ठीक है, एक ही खेत में कंटिन्यूसली वी आर ग्रोइंग वीट एंड राइस, तो क्या होता है कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज यूज़ कर रहे हैं दैट कॉजेज द डैमेज टू द सॉइल, ओके। उससे क्या होता है, लॉस हो जाता है, फर्टिलिटी लॉस हो जाता है जो सॉइल की है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ द ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगा तो उसमें क्रॉप्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। एंड वी कैन रोटेट द क्रॉप्स, व्हाट इट मीन्स, if we have first grown wheat
द नेक्स्ट टाइम वी कैन ग्रो द लेग्यूमिनस प्लांट, यानी जो दाल के प्लांट होते हैं, जो पी होता है मटर, जो ग्राम होता है, अदर जो मूंग होती है, अरहर होती है, तो ऐसे अगर प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं तो जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो सॉइल में बढ़ेगा, और इस तरह से सॉइल जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्रॉप्स उगेंगे और उसका इरोजन नहीं होगा। ओके, यस। इन केस ऑफ हिली रीजन, ओके, जो भी हिली रीजन, जो भी ऐसे माउंटेन रीजन है, जो हिली रीजन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे टेरेस बना सकते हैं इसके स्लोप पे। ठीक है, टेरेस बनाने से क्या होता है, जो वाटर अगर यहाँ पे नीचे आता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, और हाँ यहाँ पे हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं। यस, सो दीज आर द सम वेज थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन और वी कैन डू द सॉइल कंजर्वेशन। ओके, yes. So here we finish your chapter soil. Okay, yes. So here you have some question, try to attempt it, like explain one factor of soil erosion in detail, list ways to prevent the soil erosion. ठीक है, soil erosion को prevent करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, those you have to write. Yes, so that's all for today. Thank you so much. Keep studying. Bye bye.